Am I audible to all? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Give the classic symptom of malaria. Give the classic symptom of malaria. Hello? High fever, sweating, sudden shivering. High fever, sweating and Sudden shivering. Sudden shivering. very good. तो classic symptom में तुम यही लिखोगे, high fever, sweating and sudden shivering. Okay. Give the symptoms of malaria. Give the symptoms of malaria. Vomiting. Sorry? Vomiting. हाँ, वॉमिटिंग एक ही है बेटा, मैंने सिम्टम्स बोला है तो तुमको एक से ज्यादा देना है ना. क्या बोलते हैं सिम्टम्स? Fever, Headache. hepatomegaly. Hemoglobinuria. Hemoglobinuria, very good. Arthalgia, vomiting, and one more symptom I need. Hepatomegaly. Hepatomegaly, very nice. Give the treatment for malaria. Give the treatment for malaria. ACT. Sorry? ACT का फुल फॉर्म बोलना है बेटा. ACT का फुल फॉर्म. Artemisinin based combination therapies. Okay. Name the medicines that is used in ACT. Artesunate, sulfadoxine, pyrimethamine. Surbi शीर्षक. सुरभि. हाँ बोलो बेटा. Artesunate, sulfadoxine, pyrimethamine. Very good. Artesunate, sulfadoxine and pyrimethamine. Okay. Give the species of protozoa that causes malaria. Give the species of protozoa that causes malaria. Come on. Species. Plasmodium vivax. Plasmodium ovale. Let him speak. यश पवार ने पहले बोला ना बेटा, तो बीच में काटो मत. जो बंदे ने शुरू किया उसी को खत्म करके. हाँ, यश पवार. Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, and Plasmodium falciparum. Very good. Now tell me the pathogen that causes amoebiosis. Pathogen that causes amoebiosis. Amoeba histolytica. Very good. Entamoeba histolytica. Modes of transmission for amoebiosis. Modes of transmission for amoebiosis. Contaminated food and water. Eating with dirty hands. Eating with dirty hands. One more. Fecal-oral route. Very good. Fecal-oral route, contaminated food and water, and eating with dirty hands. Name the medicine that is used in the treatment of amoebiosis. metronidazole and tinidazole. Very good. Metronidazole and tinidazole. Okay. Name the pathogen that causes intestinal discomfort commonly in children. Name the pathogen. Lubricoids. Ascaris lumbricoides. Very good. Name antihelminthic drugs. Antihelminthic drugs. बेटा जानवी तुम्हारी आवाज जोर से नहीं आ रही है, तुम माइक को पास में लेके बोलो बेटा. Is it okay now, ma'am? हाँ, अब सुनाई दे रहा है. Piperazine, mebendazole, levonorgestrel, and pyrantel. Very good. Piperazine, mebendazole, levonorgestrel, and pyrantel. Very nice. Okay. Now tell me the types of filariasis. Types of filariasis. Hepatic filariasis, cutaneous filariasis, and serous filariasis. Lymphatic filariasis, serous filariasis, and the one was subcutaneous filariasis. कोई बोलेगा मुझे subcutaneous filariasis is caused due to dash. Subcutaneous filariasis is caused due to dash.
हेलो, अच्छा कोई बात नहीं, आई विल पुट दैट स्लाइड वंस अगेन सो दैट यू कैन रिवाइज। बच्चे लोग लेकिन उनको घर में रिवाइज करना चाहिए ना। So may I start with filariasis now? Those who know, kindly unmute and answer. Can you tell me the 3 different types of filariasis? Subcutaneous filariasis, lymphatic filariasis, and serous filariasis. Okay, lymphatic filariasis, serous filariasis, and subcutaneous filariasis. Name the positive agent that causes lymphatic filariasis. Positive agent या pathogen that causes lymphatic filariasis. Vaccaria bancrofti, Brugia malai, Brugia timori. Vaccaria bancrofti, Brugia malai, Brugia timori. Okay. Can anyone tell me that which pathogen causes subcutaneous filariasis? Subcutaneous filariasis. Manzanella and Loa. Manzanella species, that is Loa. Very good. Symptoms for filariasis. Symptoms of filariasis. मैंने इतने जन को अनम्यूट किया है, तो तुम में से कोई भी अनम्यूट होकर आंसर दे सकता है शायद। Edema with thickening of skin and underlying tissue in lymphatic filariasis, form infected lymphatic system and causes enlargements of lymph vessels and nodes. Name the medicine that is used to treat filariasis. Medicine used to treat filariasis. Diethyl carbamazine. Diethyl carbamazine. Citrate. Diethyl carbamazine citrate. Okay, twice a day for 3 weeks. And thereafter 5 days for 6 months. Okay. Name the positive agent of typhoid. Positive agent of typhoid. Salmonella typhi. Very good. Salmonella typhi. The antigenicity or the pathogenicity of typhoid is due to dash. Antigenicity or Antigen, lipopolysaccharide. Okay, lipopolysaccharide complex, O antigen, and the flagella contain what? H antigen. Now wait. Shirley D'Souza, can you hear me? Shirley, जब जवाब नहीं देना है, क्लास में बैठते नहीं हो तो क्यों आते हो? शीतल सिंह, सानिका खैर, साहिल बारोकर, जिसको आंसर आता है वो बोलो, फालतू का अटेंडेंस लेने के ऐसा नाम बोलो, भगड़े जवाब भी नहीं देते। Give the diagnostic test for typhoid. Vidal test. Name the antibiotics used for the treatment of typhoid. Chloromycetin. Name the vaccines available for typhoid. Typhoid, tab. Typhoid and tab vaccine. तुमको बोलना पड़ेगा उसमें से ओरल कौन सा है और इंजेक्टेबल कौन सा है। जैसे ओरल वैक्सीन TY21 है, ठीक है, और इंजेक्टेबल कौन सा है? टाइफम BI और टाइपेरिक्स। ओके, व्हाट इज निमोनिया? It is an inflammatory conditions of lungs or alveoli. Name the pathogens that causes pneumonia. Wait. Kunal Shinde. Yes, ma'am. Pathogen that causes pneumonia. Influenza virus, adenovirus, parainfluenza, and respiratory syncytial virus. बस वायरस ही कॉज करता है ये निमोनिया बेटा। Fungal भी है मैम, Streptococcus pneumoniae and fungal pathogens, example like pneumocystis jirovecii.
और बैक्टीरिया नहीं कॉज करता है बेटा, ये बैक्टीरिया नहीं कॉज करता है ये बीमारी। कुणाल तुमको पता है मैंने ये तुमको ही क्यों पूछा? लास्ट टाइम मैंने आंसर दिया था। हाँ, तो अब बोलो बैक्टीरिया दैट कॉजेज निमोनिया। क्या हुआ? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। यस मैम। हाँ, लास्ट टाइम मैंने ही आंसर दिया और ये बार मैं भूल गया मैडम। नेम द मेडिसिन और एंटीबायोटिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर निमोनिया। नितिश राय। यस मैम। बेटा, डू यू रिमेम्बर एनी एंटीबायोटिक दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया? मैम बेंजल, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन। वन मोर। मैम क्लोरामफेनिसिलॉल। तो क्लोरामफेनिसोल। इन्विटेशन माई चाइल्ड, बा मैम मुझे पूछेगी तभी मैं अपने क्या बोलते हैं ज्ञान के गंगा को बहाऊंगा। नो मैम, नो मैम। तो हैंड रेस का ऑप्शन है ना बच्चे, ठीक है। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर कॉमन कोल्ड? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर कॉमन कोल्ड? Rhinovirus or coronavirus. Nasopharyngitis, acute viral rhinopharyngitis, acute coryza. Name the pathogen that causes cold. Pathogen that causes cold. Rhinovirus and coronavirus. Rhinoviruses known as rhinovirus and coronavirus. Okay. Now this one we did it. फटाफट एक बार रीड करो तो मैं कुछ नया चालू करूं। Okay. What is dermatophytosis? Anyone? What is dermatophytosis? It is a fungal infection. Be louder. Hello? Fungal infection of skin. Okay. The fungus belongs to which genera? The fungus belongs to Mycophyton and the Microsporum. okay, Trichophyton and Microsporum. What is onchomycosis? Nail infection. Don't say nail infection, you will not get marks, child. It is a fungal infection of nails. Onchomycosis is the fungal infection of what? Nails. Okay? What is athlete's foot? What is athlete's foot? Hello? Fungal infection of toes. Fungal infection of? Can you please be louder? Feet. Fungal infection of feet. Fungal infection of feet. Okay. Now next what we are going to deal with is dengue. हम 90% लोग इसको डेंगू बोलते हैं क्योंकि लास्ट में यू ही है, ठीक है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम क्या बोलते हैं उसको, डेंगी। यू साइलेंट है यहाँ पे। और डेंगी जो है ना बच्चे लोग, इट्स अ वायरल डिजीज। अब मुझे ये बताओ तुम, ये वेक्टर बॉर्न है कि व्हीकल बॉर्न है? इज इट वेक्टर बॉर्न और व्हीकल बॉर्न? Vector borne. क्यों वेक्टर बॉर्न बोला आपने? व्हाई यू आर कॉलिंग इट एज वेक्टर बॉर्न? Transmission of pathogens is carried through a living agent. And which is that living agent? Mosquito. Very good. So dengue is a vector borne disease. क्यों बोला गया है वेक्टर बॉर्न? बिकॉज द पैथोजन, कौन है इसका पैथोजन, किसके कारण हो रहा है डेंगी? वायरस के वजह से। और इसको इंसान के शरीर तक लाके छोड़ने का काम कौन करता है? मस्कीटो। कौन सा मस्कीटो? फीमेल एडिस मस्कीटो। कौन सा मस्कीटो? फीमेल एडिस मस्कीटो। ओके। सो डेंगी जो है इज अ वायरल डिजीज, वायरस के कारण हो रहा है। इट्स अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। व्हाई? बिकॉज द पैथोजन दैट इज द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल एडिस मस्कीटो। ओके, तुमको इतना ही है तो इतने पे ही हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैंसर। तुमने 11th स्टैंडर्ड में सेल डिवीजन पढ़ा,
सेल डिवीजन में तुमने क्या पढ़ा? द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू ईदर 2 और 4 न्यू सेल इज नोन एज सेल डिवीजन। और बच्चे लोग जब सेल डिवाइड होता है क्या हुआ? जब सेल डिवाइड होता है तो हमको यस जस्ट फॉर व्हाट हैपेंड? मैम मेरा म्यूट हो गया था वापस, अनम्यूट करने को ना था। ओके, तो कैंसर व्हाट आई वाज टेलिंग, हमारे बॉडी में जब सेल डिवाइड होते हैं ना, हमारे बॉडी को पता होता है कि सेल डिवीजन हो रहा है और कब कितना होना है, कब तक होना है, ये सब कुछ वो न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा सेल डिवीजन। ओके, लेकिन कभी कभी किसी किसी के शरीर में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है बच्चे लोग सेल्स का, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स, जिसके वजह सेल आगे जाके कुछ बनता है क्या? नहीं, इट फॉर्म्स जस्ट एन अनडिफरेंशिएटेड मास, कोई काम नहीं कर रहा है, बस वो एक मास ऑफ सेल्स के तौर पे है। एंड दिस मास ऑफ सेल इज नोन एज व्हाट? ट्यूमर। ये मास ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज कैंसर? It is an abnormal, uncontrolled division of cell that leads to the formation of undifferentiated masses of cells, that is what? Tumor. Okay. जो लोग कैंसर के बारे में पढ़ाई करते हैं और उसका रिसर्च करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को वर्ड स्टैंड्स फॉर कैंसर। ऑन्को वर्ड जो है इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? कैंसर। तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो कैंसर को ही ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स होते हैं या जो इनके बारे में पढ़ाई करते हैं। अब ये कैंसरस सेल जो है ना वो डिवाइड होगा और क्या फॉर्म करेगा? गांठ, दैट इज द लम्प और मासेस ऑफ टिश्यू और अ ट्यूमर इज नोन एज व्हाट? नियोप्लाज्म। कैंसरस सेल डिवाइड टू फॉर्म लम्प और मासेस ऑफ टिश्यू इज नोन एज व्हाट? नियोप्लाज्म। Cancerous cell divide to form lumps or masses of tissue is known as what? Neoplasm. नॉर्मल बॉडी सेल डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा और वो डाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल बॉडी सेल है। कैंसरस सेल को देखो, they do not die, they just continue to grow and divide in a disorder fashion. ठीक है, उसका कोई सिस्टम नहीं है, वो ऐसे ही डिवाइड होते जा रहा है, ऐसे ही डिवाइड होते जा रहा है, कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है। और क्या फॉर्म करता है? a lump, a heap of cell, a lump of cell. And there are two types of tumors, malignant tumor and benign tumor. बच्चे लोग जो benign tumors होते हैं ना, जो गांठ होते हैं, वो एक ही जगह पे रहता है। वो क्या रहेगा? एक ही जगह पे रहेगा। एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? एक मास है, ये मास है, इसके अंदर है कैंसरस सेल, इसके अंदर है। तो जब ये इसके अंदर बैठ के डिवाइड कर रहा है, जब ये इसके अंदर बैठ के डिवाइड कर रहा है, तो इस ट्यूमर को हम क्या बोलेंगे? बनाइन ट्यूमर। क्या बोलेंगे हम? बनाइन ट्यूमर। ओके, इट इज हार्मलेस, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, हार्मलेस है। तुम सर्जरी से निकाल दो, ठीक है, सर्जरी कर दो और निकाल दो। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ना, उसको ऐसा कैप्सूल नहीं होता है, इसको ये कैप्सूल नहीं है, ये मैलिग्नेंट हो गया अभी। तो इसके पास कैप्सूल नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है? इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ऐसे ट्यूमर्स जो होते हैं वो हार्मफुल है, उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, बेनाइन ट्यूमर इज हार्मलेस, मैलिग्नेंट ट्यूमर इज हार्मफुल। तुमको ये समझा मैंने क्या बोला है? कैंसर क्या है बच्चे लोग? एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ सेल which forms a mass of cell, undifferentiated mass of cell, that is tumor. कैंसरस सेल डिवाइड होके क्या फॉर्म करता है? लंप, तो हम उसको बोलते हैं नियोप्लाज्म। ठीक है, अब ये कैंसरस सेल जो है वो जो लंप फॉर्म किया है वो दो टाइप के ट्यूमर्स बनाएगा। एक ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो हार्मफुल है कि हार्मलेस है? मैलिग्नेंट ट्यूमर हार्मफुल है कि हार्मलेस है? हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है वो? Why it is harmful? To other parts of body. It can spread from one part of the body to another. Whereas benign tumors are harmless. Harmless. Why? As it cannot spread in the body. It does not spread in the body. क्यों नहीं spread हो रहा है? Because it is enclosed inside a capsule. Benign tumor क्यों नहीं spread हो पा रहा है? क्योंकि उसको बाहर से क्या है? कैप्सूल है। Am I clear with this slide? Shall I proceed?
Yes, ma'am. देखो बच्चे लोग, अब मैं जो स्लाइड दिखा रही हूँ उसमें रेड में जो दिखा है देखो, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ओमा, ठीक है। सबके लास्ट में तुमको ओमा वर्ड दिख रहा है। ओमा वर्ड स्टैंड्स फॉर कैंसर। ओमा वर्ड का मतलब ही क्या है? कैंसर। और 5 टाइप का कैंसर होता है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ठीक है, एडिनोमा, एडिनोमा, ल्यूकीमिया। 5 टाइप का कैंसर है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, आ गया, एक मिनट का, ल्यूकीमिया, give me a minute, ल्यूकीमिया, एडिनोकार्सिनोमा, ओके। तो 5 टाइप का कैंसर, और टाइप का कैंसर, वैसे तो देखा जाएगा तो 100 से भी ज्यादा अलग टाइप के कैंसर है, तो उसको याद रखना मुश्किल है। इसके लिए हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। तो कार्सिनोमा क्या है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग। जो एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग से बाहर ओरिजिन करता है, ओके। जो कैंसरस सेल एपिथेलियल टिश्यूज से आते हैं उसको हम कार्सिनोमा बोलते हैं, जैसे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, कैंसर ऑफ स्टमक। सार्कोमा, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? कनेक्टिव टिश्यू से, सच एज कार्टिलेज, बोन टिश्यू एक्सेट्रा, ठीक है। तो बोन ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? बोन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियो ट्यूमर है, इसके लिए ऑस्टियोसार्कोमा। मसल का ट्यूमर है तो मायोसार्कोमा। कार्टिलेज का कैंसर है तो कॉन्ड्रोसार्कोमा। एडिपोस टिश्यू का कैंसर है तो लाइपोसार्कोमा, ठीक है। लिम्फोमा जो है, ओके, ये स्लाइड कर लो पहले। कार्सिनोमा क्या है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग। सार्कोमा क्या है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। तो एक बार ये ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। What is carcinoma? What is carcinoma? Hello? Can you people hear me? Hello? Yes, हाँ तो बोलो ना। yes, ma'am. What is carcinoma? एक मिनट बेटा। जय पवार, Yes, ma'am. काय रे कार्सिनोमा काय आहे? It's originate from epithelial tissue lining. Very good. Can you give me any example for carcinoma? Lung cancer, breast cancer, skin cancer, cancer of stomach. Very good. कपिल मौर्य, कपिल मौर्य, ये मौन व्रत धारण किया है मौर्य। कौस्तुभ प्रभु, कौस्तुभ प्रभु, आर्यन दलवी, okay, who will tell me what is sarcoma? It originates from connective tissue. It originates from the connective tissue. Okay, give me a minute. Someone is trying to answer by raising the hand. Let me find out who is that person. But I cannot see any hand raised. Arya Sawant. Arya Sawant. Yes, Arya Sawant. Do you want to speak, Arya? Yes. Okay. Can anyone tell me the scientific term for bone tumor? Bone tumor. Osteosarcoma. Muscle tumor. Myosarcoma. Cancer of cartilage. Chondrosarcoma. Cancer of adipose tissue. Liposarcoma. Sarcoma. Very good. Now the next one is lymphoma, oma, tumor or the cancer that arises from the lymphatic tissue, spleen, lymphatic node, ठीक है, या immune system का कोई भी organ. Then leukemia.
ल्यूकीमिया बेसिकली है ना बच्चे लोग, इट इज द कैंसर ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो का कैंसर है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, वो WBC ज्यादा प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? WBC ज्यादा प्रोड्यूस करता है। सो एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ WBC इन द बोन मैरो इज नोन एज व्हाट? ल्यूकीमिया। जैसे कि लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, ये टाइप है उसके। एडिनोकार्सिनोमा, तुम एडिनोमा भी बोल सकते हो, एडिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा जो है, इट इज द कैंसर ऑफ ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड का। ठीक है, वो क्या है उसका, कोई तो एक एक्टर को बीच में हुआ था ना यार, ग्लैंड का एकदम डर, मेरे ख्याल से इरफान खान, वो है क्या, मर गया ना वो, इरफान खान ना, हाँ, उसको हुआ था ये एडिनोस कार्सिनोमा, विच इज द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ कैंसर। वो भी उसके ब्रेन के पार्ट में हुआ था, रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ कैंसर है। ठीक है, सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ कैंसर। जस्ट रिवाइज दिस पर्टिकुलर स्लाइड। Okay, who will tell me that 5 different types of cancer? 5 different types of cancer. Hello, hello, am I audible? हाँ, Ma'am, carcinoma, sarcoma, lymphoma, leukemia, and adenocarcinoma. sarcoma. very good. Give me a minute. Now children, can you people hear me? Hello? Yes, ma'am. The factor, okay, or the substances that cause cancer is known as carcinogenic factor or carcinogen. The factor or the substances that cause cancer is known as carcinogen. Carcinogen का मतलब क्या है? ऐसी चीजें जिससे कैंसर हो सकता है। बच्चे लोग, आज तक कोई नहीं बोल सकता है कि ये करने से कैंसर होगा ही होगा। ओके, इट कैन कॉज कैंसर, इट कैन कॉज कैंसर। 80s के टाइम पे या 90s, 80s के टाइम पे, 70s के टाइम पे ना, अपने देश में हार्डली 5% लोगों को कैंसर होता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ी, कल्चरल इन्फ्लक्स आने को शुरू हुआ, तो देखा गया हमारे देश में कैंसर्स के रेट बढ़ चुके हैं। ऐसा क्या था? हमेशा याद रखो चिल्ड्रन, nowadays I know that you people, much of you people love Western things. Okay, we all do. Okay, there is no harm in doing so, but we should know that how much to do and how to do. You cannot stop the changes that is taking place in the coming time, but you can have a very good clear vision. हम क्या करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। हम में से कोई भी इंडियंस जो है ना, वो ज्यादा हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमको ये फुकट में मिला है। तुमने मेहनत की है क्या तुम्हारे आंख को बनाने या तुम्हारे शरीर को बनाने? तुमने मेहनत की है? नहीं, अपन खाना खा रहे हैं क्योंकि भूख लगती है और पेट भरता है, खाने का टेस्ट अच्छा लगता है। क्या हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, या फिर वो हमारे शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्दी रखेगा, हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखेगा? इंडियंस में से बहुत कम परसेंटेज लोग जो है ये आजकल ऐसा सोच के खाते हैं that what we feed to our body that helps in the development of our physical, mental and our emotional aspects of the body. हम क्या खाते हैं, हम क्या खा रहे हैं, उस पर निर्भर करता है हम फिजिकली कितने हेल्दी हैं, हम मेंटली कितने हेल्दी हैं और हम इमोशनली कितने हेल्दी। ओके, मैंने ये क्यों बोला? तो चलो, हर कंट्री का अपना जोग्राफिकल फैक्टर होता है, क्लाइमेट होता है, और नेचर ने ना उस फैक्टर के हिसाब से वहां पे क्रॉप्स, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल फैक्टर एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट और रीजन, क्रॉप इज ग्रोन। नॉर्थ की तरफ जाओ, ठंडा है, तो वहां पे लोग जो है वो लोग पल्सेस ज्यादा उगाते, या फिर बीट है, या तो फिर क्या बोलते हैं ना उसको, भुट्टा, ये सारी चीजें ज्यादा खाते। साउथ की तरफ आओगे तो वहां पे लोग जो है स्पाइसेस बहुत ज्यादा खाते हैं, राइस खाते हैं, राइस बेस्ड फूड उनका ज्यादा होता है क्योंकि वहां का क्लाइमेट वैसा है। वेस्टर्न कंट्री
कंट्रीज में ठंडी ज्यादा होने के वजह से वहां के लोग जो है फैट बेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं। चीज गर्मी देगा वो बॉडी को, ठीक है, या उन लोग दारू पीते हैं क्योंकि वो गर्मी देगा, उनका वहां का क्लाइमेट वैसा है। लेकिन हमने तो वही करना है जो अंग्रेज कर रहे हैं, है ना। अंग्रेज ने अगर कुछ भी किया तो इंडियंस को वो करना ही करना है, इररेस्पेक्टिव उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस। हमने हमारा डाइट चेंज किया है। सेकेंड थिंग, पहले के जमाने में लोग बॉइल्ड वाटर पिया करते थे, लेकिन आजकल तुम लोग का आरओ पारो सब कुछ आ चुका है ना। यूवी रेज वाला जो है या रेडिएशन टेक्नोलॉजी से सारे जर्म्स को मार दिए गए। पहले के लोग जो है वो खाना बनाते थे और वो गर्म खाना खाया करते थे, लेकिन आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, इसके लिए उन लोग रेडी टू ईट वाला फूड खाते हैं। लाया, उसको गर्म पानी में डाल दिया और वो खा लिया। पहले के जमाने में लोग मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन यूज करते थे, फिर धीरे धीरे वो मेटल में चेंज हुआ, कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास, देन केम अप स्टील, स्टील तक ठीक था, फिर आया अल्यूमिनियम, उसके बाद आया प्लास्टिक विच लीड्स टू अ कैंसर। ओके, सी हाउ वी, पहले के जमाने में डब्बे कहाँ होते थे, डब्बा होता था क्या? बहुत ज्यादा, अगर तुम देखोगे 80s और 90s में स्टील के डब्बे आए, फिर बाद में स्टील को रिप्लेस कर दिया प्लास्टिक ने। ओके, लेकिन उससे पहले क्या करते थे, जैसे नॉर्थ में कोई भी मेरे को नॉर्थ का कल्चर ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन हम साउथ वाले क्या करते हैं, हम केले के पत्ते में टिफिन रैप किया करते थे। मतलब खाना जो है वो गरम गरम केले के पत्ते पे डाल दिया, उसको रैप कर दिया। खाने को अगर गरम खाने को केले के पत्ते पे डाल दिया जाए तो केले के पत्ते का न्यूट्रिएंट्स वो खाने में मिक्स हो जाता है। ओके, लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, प्लास्टिक के डब्बे में गरम खाना डाल देते हैं, प्लास्टिक के बोतल में गरम पानी डाल देते हैं, और ये प्लास्टिक जो है वो क्या रिलीज करता है, कार्सिनोजेन। क्या रिलीज करता है, कार्सिनोजेन। ओके, दैट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। बेसिकली मुझे ये बोलना है, तुम सुबह से लेकर रात तक जो भी सामान यूज कर रहे हो मैक्सिमम वो कार्सिनोजेनिक है। तुम्हारे टूथपेस्ट के पीछे ही देख लो कितने सारे केमिकल्स लिखे हुए। तुम जिस साबुन से नहाते हो उसके पीछे देख लो कितने केमिकल्स लिखे हुए। शैम्पू हो गया तुम्हारा, तुम जो खाना बना रहे हो या खा रहे हो, अगर वो तुम सही तरीके से नहीं कर रहे हो, प्लास्टिक का बर्तन है, ओके, या तो फिर क्या बोलते हैं, तुम्हारे मैगी हो गया, तुम जो कलर्स यूज कर रहे हो, खाने में आजकल कलर डालते हैं ताकि खाना कलरफुल दिखे। ओके, देन ज्यादा तेल खाना, ज्यादा रेड मीट खाना। ओके, ये सारी चीजें हमारे बॉडी के सेल्स को स्टिम्युलेट करता है so that it can turn to be what, abnormal cells. So these are some of the causes that causes what, cancer. The substances that cause cancer is known as carcinogen. तुम्हारा जो पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब फालतू चीजें, फुरफुरे, वो उसके अंदर कौन सा गैस भरते हैं, फॉर इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर वेफर? नाइट्रोजन। Is it good to take in nitrogen inside the body? पहले के जमाने में लोग खाना खाने के बाद क्या पीते थे, दही या छाछ, है ना, लस्सी। आजकल तुम लोग क्या पीते हो, कॉफी, चाय, और क्या है वो दुनिया भर का कोका कोला, और वो क्या है वो जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है। अरे कार्बोनेटेड ड्रिंक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे बॉडी का क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी गैस है, और तुम उसी को घुसाते हो अंदर। जो बॉडी बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है, हम वो डबल अमाउंट में डाल रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे सब्सटेंसेस जो है वो कैंसर कॉजिंग है। मैंने तुमको डाइट के बारे में बता दिया। अब दूसरा है केमिकल। केमिकल्स का, तुमको मालूम है, एक इंसान जब सिगरेट स्मोक करता है उसमें उस धुएं में 100 से ज्यादा ऐसे केमिकल है जो कैंसर कॉज कर सकता है। तो अगर मेरे जितने भी अच्छे बच्चे जो लड़के हैं, आजकल तो लड़कियां भी कम नहीं है, ठीक है, सिगरेट अगर पीते हैं या कोई तुम्हारे बाजू में खड़े रह के पीता है, मत खड़े रहो। वो सिगरेट के पैकेट पे इतना गंदा वाला फोटो है, कौन सा सिगरेट का पैकेट, अच्छा, सब पैकेट पे इतना गंदा वाला फोटो है। आई डोंट अंडरस्टैंड लुकिंग एट दिस थिंग, हाउ कैन अ पर्सन स्मोक अ सिगरेट? अब तुम बोलोगे मैम दुनिया भर के लोग जो सिगरेट पीते क्या सबको कैंसर होता है? या भाई जिसकी नसीब अच्छी है, जिसका कर्मा अच्छा है वो निकल गया। अब तुमको क्या मालूम तुम्हारी नसीब अच्छी है या नहीं है? हाँ,
वो टार टार, मुझे पता नहीं आजकल लोग करते हैं कि नहीं, जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो बारिश के पहले हमारे चौल एरिया में टार जो है उसको पिघलाया जाता था। कभी खड़े रह के दिखाओ उस टार के बाजू में, अगर जो बिना मास्क के 5 मिनट खड़े रहा ना, मैं मान जाऊंगी हाउ सफोकेटिंग इट इज। वो जो गैसेस जो उसमें से निकल रहे बच्चे लोग, उसमें से आधे से ज्यादा जो है हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है। इट हैज द कैपेसिटी टू कॉज कैंसर। Why to harm our body when we know all such things? CFL बल्ब जो लगा रहे हैं आजकल, एनर्जी क्या है, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब, उसमें से भी कैंसर कॉजिंग गैसेस निकलता है। तो यूज मिनिमल ऑफ दिस। अब तुम बोलोगे मैम अगर आप बोल रहे हो कि सारे चीजों में कैंसर हो रहा है तो हम मर गए, मत मरो यार, कौन बोल रहा है मर गए। यू प्रिपेयर योर बॉडी, यू इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल ऑफ योर बॉडी। ये कैंसर, ये जो बच्चे लोग एलोपैथी दवाइयां है ना, इन लोग दुकानें हैं, इन लोग शॉपिंग मॉल खड़ा करते हैं। तुम एक दवा लोगे उससे तुमको दूसरा बीमारी होगा, दूसरे की चालू करोगे तीसरा बीमारी होगा। बेटर यू इंक्रीज योर इम्यूनिटी लेवल, कीप योर बॉडी ऑक्सीजनेटेड, avoid using the things that causes harm to your body। कोई भी चीज जब एक्सेस में करोगे वो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। excessive drinking, excessive smoking, excess of fat, excess of chemicals। तो कोई लोग रहते हैं जिनको कुछ भी होएगा ना डॉक्टर के पास जाने का। आजकल ऐसे भी नमूने हैं जिनको कुछ नहीं भी हुआ है तो भी उनको एक्सरे निकालना है। एक्सरे, तुमको मालूम है एक्सरे अगर तुम एक बार निकालते हो, 2 बार निकालते हो, सेल्फ प्रेफरेंस, मतलब मुझे खुद से निकालना है भाई मेरा एक्सरे, कोई डॉक्टर ने नहीं बोला। एक बार निकालेगा, 2 बार निकालेगा, वो देखेगा तुम हमेशा ये करते हो, वो मना कर देगा। क्यों? बिकॉज those radiations have the capacity to cause cancer। अगर तुमने एक्सरे रूम में देखा है, जो बंदा एक्सरे टेक्नीशियन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का कुछ कपड़ा पहनता है ताकि उसके बॉडी में वो रेडिएशन ना जाए, और जो पेशेंट है उसके अलावा किसी और को खड़ा भी नहीं करवाते ताकि दूसरे के शरीर में वो रेडिएशन ना जाए। ओके, तो बेसिकली केमिकल्स कौन सा है जो कॉज करता है कैंसर? पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें बेंजीन सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कॉजेज कैंसर। सिगरेट में जो केमिकल है निकोटिन, इट कॉजेज कैंसर। कैफीन, कॉफी में जो क्या बोलते हैं केमिकल है कैफाइन, इट कॉजेज कैंसर। इसके लिए हद से ज्यादा कॉफी भी मत पियो, ठीक है। और तुम्हारा आजकल वो एनर्जी ड्रिंक आया है ना, वो क्या बोलते हैं रेड बुल, फेडबुल, उसका कभी कैफाइन कंटेंट देखा है? 40% to 60% कैफाइन है। अगर तुमको एनर्जी चाहिए तो तुम टाइम पे उठो, एक्सरसाइज करो। देखो ये सारी बिना चीजों के भी तुम क्या कर सकते हो, एनर्जी आ जाएगी। ये सब वेस्टर्न कल्चर है। रेड बुल पीने से मुझे पंख आ जाएंगे, मैं सुपरमैन जैसा काम करूंगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मुझे क्या बोलते हैं ना ठंडी लगती है इसके लिए मैं दारू पीता हूँ ताकि मुझे गर्मी लगे। अबे 100 बार उठक बैठक कर, तुझे ऐसे ही गर्मी लगेगी, है कि नहीं? चीज और पिज्जा खाते हो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, घी खाओ यार। हमारे देश का क्या है, हमारे देश का सैचुरेटेड फैट क्या है? घी है। घी खाओ, मना नहीं किया है, लेकिन घी खाने के बाद उतना काम भी करो उसको पचाने के लिए। ओके, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से बहुत रेयर होता है जेनेटिक कैंसर को लेके। रेडिएशन, ओबेसिटी, आजकल हद से ज्यादा मोटे हो गए तो भी कैंसर होता है लोगों को। वायरस, एक है क्या बोलते हैं HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एप्सिन बार वायरस, ये सारे वायरसेस जो है वो कार्सिनोजेनिक है। ओके, ऑन्कोजीन, हम जब एनवायरमेंट में जहाँ पे रेडिएशन बहुत है, केमिकल बहुत है, हमारा डाइटरी फैक्टर बराबर नहीं है, लेट खाना, ओके, खा के सो जाना, बहुत तेल वाला खाना खाना, ठीक है, डाइटरी फैक्टर के कारण एडिक्शन, स्मोकिंग होने दो या तो फिर क्या बोलते हैं अल्कोहल होने दो, किसी भी तरह का एडिक्शन। तुम अगर हद से ज्यादा कोई भी चीज अपने शरीर के अंदर डालोगे, इट हैज द टेंडेंसी टू इरिटेट योर सेल्स, so the normal cells will turn into what? Into cancerous cells। ओबेसिटी आजकल एक अपकमिंग फैक्टर है। अगर तुम देखोगे आज इंडियंस लोग 60% ऑफ इंडियंस आर अफेक्टेड फ्रॉम कैंसर। फर्टिलाइजर, पंजाब में एक गांव था, हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है
फार्मर्स को, किस चीज के लिए? फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए सब्सिडी दे रही है। मतलब हमारा गवर्नमेंट खुद चाहता है सब्सिडी, मतलब अगर 100 रुपए का कोई सामान है तो गवर्नमेंट बोलती है हम हमारी तरफ से 60 रुपए में बेचते, 40 रुपया तुम्हारा माफ। फार्मर क्या, कोई भी इंसान अपना फायदा देखेगा, वो जाके खरीदता है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खरीद रहा है वो, तो वो फार्मर यूज कर रहा है ना, ये सारे केमिकल्स उसके शरीर के अंदर जाते, नाक से, स्किन से। और पंजाब में एक पूरे गांव के फार्मर्स को क्या हो गया था? कैंसर। पूरा एक गांव, पूरा एक जिले के फार्मर्स को कैंसर हो गया था बच्चे लोग। जब तुम सब्सिडी दे रहे हो तो तुम उस फार्मर्स के लिए नहीं लगता है ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए था या सब्सिडी पे देना चाहिए था? think rationally what our country is doing with us, or you think rationally how to take care of your body. These all factors come into role. It plays a very important role. Now, तुमने देखा रहेगा एड्स आते, कोका कोला में इतना % पेस्टिसाइड, थम्स अप में इतना % पेस्टिसाइड। तुमको क्या लगता है ये कंपनी बैठ बैठ के पेस्टिसाइड मिलाती है अपने कोका कोला में? चलो पेस्टिसाइड मिलाते और पब्लिक को पिलाते हैं। कहाँ से आता है ये पेस्टिसाइड? एनी आइडिया? कहाँ से आया ये कोका कोला में, थम्स अप में, स्प्राइट में? कहाँ से आ रहा है ये पेस्टिसाइड? हाँ, ये तो रिपोर्ट में आता है ना कि भाई ये कंपनी का मत पियो, इन लोग के क्या बोलते हैं ड्रिंक्स में 60% पेस्टिसाइड है, 70% पेस्टिसाइड है, 40%। ये गवर्नमेंट ही पब्लिश कर रही है, मीडिया पब्लिश करती है। कहाँ से आता है ये पेस्टिसाइड? तुमको क्या लगता है कोका कोला वाला जानबूझ के पेस्टिसाइड डालता है? पागल है वो? एनी आइडिया? कभी सुना है ये केस? अरे सो गए क्या रे सारे? मैम फ्रूट से आता होगा, पेस्टिसाइड वहाँ पे भी डालते हैं ना। किधर से आता होगा? किधर से आता होगा चौधरी? मैम पेड़ पे डालते हैं ना कीड़े उड़े को मारने के लिए। बेटा लेकिन कोका कोला तो पेड़ पे नहीं बनते ना बच्चे। मैम फ्रूट रहता है ना, हाँ तो फ्लेवर्स डालते हैं। लेकिन बेटा जहाँ एग्रीकल्चर होता है उसके कुछ दायरे तक तुम अपना फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हो, बहुत दूर होता है ये फैक्ट्री एग्रीकल्चरल एरिया से। तो कहाँ से आया? यू आर इन द करेक्ट ट्रैक चौधरी, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, यू आर ऑन द करेक्ट ट्रैक। मैम प्लांट्स की लाइफ ज्यादा रखने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स डालते हैं उस पर। हाँ वो मैंने बोला, चौधरी ने भी वही बोला है, रूट्स के थ्रू आता है। लेकिन रूट्स के थ्रू कैसे? वो तो प्लांट के अंदर जाएगा। द पेस्टिसाइड सीप थ्रू द सॉइल। सीप समझता है? ये पेस्टिसाइड या फिर केमिकल फर्टिलाइजर डालने के बाद फार्मर पानी भी तो डालता रहेगा ना अपने क्रॉप्स को। तो पानी जो है वो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स को नीचे लेके जाता है मिट्टी में, और हमारा ग्राउंड वाटर टेबल पूरा पोल्यूटेड है। हमारा पूरा ग्राउंड वाटर टेबल पोल्यूटेड है। बेचारे राजस्थान में एक गांव के आधे से ज्यादा जनता को कैंसर हो गया। कहाँ से हुआ कैंसर? वहां तो पानी ही नहीं है, क्योंकि दे यूज टू डिपेंड ऑन व्हाट? द अंडरग्राउंड वाटर। और इवन आवर अंडरग्राउंड वाटर्स आर पोल्यूटेड चिल्ड्रन। So we people say don't use this particular drinks as they can harm. एक बार पियो, 2 बार पियो, it's fine. तुमको पता है साउथ में एक एक्टर था, फेमस एक्टर था, he died at the age of 45. How he died? At the age of 45, renal failure, किडनी फेल हो गया। अरे बंदा अच्छा खासा हेल्दी था, एक्सरसाइज करता था, तो फेल कैसा हो गया उसका किडनी? वो एक दिन में 30 बॉटल कोका कोला पीता था। वो पानी नहीं कोका कोला पीता था, पेस्टिसाइड। बेचारा किडनी वो फिल्टर करते करते थक गया, पेस्टिसाइड पूरे अंदर जमा कर लिया, किडनी फेल हो गया, मर गया वो 45 के एज में। So it is very important to take care of our body. Okay? और ये जो पर्टिकुलर बीमारी है कैंसर, गम नहीं होगा अगर ये अमीरों को मतलब जैसे हाई प्रोफाइल लोगों जिनके पास पैसा है, उन लोग लंदन में जाए, अमेरिका में जाए, अपना क्या बोलते हैं ना वो कर ले, क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट। जब गरीबों को होता है ना तब मुझे तकलीफ होती। एंड कौन था वो क्रिकेटर जिसको कैंसर हुआ था? कौन था? ये लड़के लोग, एक क्रिकेटर को कैंसर हुआ था ना, कौन? युवराज सिंह। युवराज सिंह। हाँ युवराज सिंह।
तुमको मालूम है उसका इंटरनेशनल फ्रंट में बुक रिलीज हुआ है एंड द नेम ऑफ द बुक वॉज द पेनफुल जर्नी ऑफ युवराज सिंह थ्रू कैंसर। क्या पेनफुल जर्नी भाई, तेरे पास पैसा था, तेरे को कैंसर हुआ, तू सीधा लंदन चला गया, तू ठीक हो गया और आ गया। तुमको पेनफुल जर्नी देखना है ना कैंसर पेशेंट का, टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बाहर कभी खड़े रहो, 6 महीने लग जाते एक कैंसर पेशेंट को एक ऑन्कोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट मिलने के लिए। बच्चे लोग पैसे नहीं होते, एक एक दिन की दवाइयां इनकी शायद 20 से 25 हजार रुपए की है, और ये किसी को भी हो सकता है, कोई भी एज ग्रुप को हो सकता है। अब तुम बोलोगे मैम बचने का कैसे? सिंपल तरीका है, दिन में 2 नींबू का रस पीना है, गार्लिक, रेड फ्रूट एंड एक्सरसाइज, द बेस्ट वे टू कीप द कैंसर एट बे। These are the basic things that can help to prevent the cancer from entering inside the body, and do not use the things that are carcinogenic in nature. Be traditional, be down to earth, be to the ground. Okay, so these are what? Carcinogen, the chemicals that cause cancer. ऑन्कोजीन बोलते ना नसीब खराब है, नसीब जिसकी खराब है उसमें हमारे पास है ना खुद, हमारे बॉडी के अंदर खुद एक जीन्स है जिसके वजह से कैंसर होता है। वो ऑफ मोड पे रहता है बच्चे लोग, वो ऑफ मोड पे, वो चुपचाप बैठा है। लेकिन जब कार्सिनोजन बार बार एंटर हो रहा है तो ये ऑन्कोजीन क्या हो जाता है? ट्रिगर हो जाता है, ट्रिगर स्टिमुलेट होता है। कार्सिनोजन एडिक्शन हो सकता है, डाइटरी फैक्टर हो सकते हैं, केमिकल हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये ऑन्कोजीन जो है जब वो चालू कर देता है उसके वजह से कैंसर होता है। ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन। ओके, यू नो देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर दैट इज फाउंड ओनली इन कश्मीरी पीपल। कश्मीरी पीपल में एक कैंसर देखा गया है जिसको हम बोलते हैं कांगरी कैंसर, कांगरी। अब ये कांगरी क्या है? कश्मीर में बहुत ठंडी होने के वजह से जो वहाँ के गरीब लोग हैं उन लोग पहाड़ी इलाके में जाके क्या जमा करते हैं? ये अपना फायरवुड लकड़ी जमा करते हैं। ठीक है, जब लकड़ी जमा करते हैं ना तो उनको ठंड लगती है, जैसे जैसे वो पहाड़ी इलाका चढ़ते, तो वो क्या करते हैं? एक छोटा सा मटका, हम नवरात्रि पे जो वो मटका यूज करते हैं पता है, छोटा सा, वैसे मटके में कोयला डालते, ओके, गरम कोयला, और उन लोग है ना उसको कांगरी बोलते। वो छोटा सा मटका जिसके अंदर कोयला डाला है उसको कांगरी बोलते, और उन लोग ना उसको अपने पेट से बांध के रखते, पेट पे बांधते ताकि उनको अंदर से, और उसके ऊपर उन लोग अपना कफ्तान पहनते ताकि उन लोग को गर्म रह सके। अब तुम देखो कैंसर का हालत देखो तुम, वो गरमपन, ठीक है, कांगरी का जो गर्मी है वो कंटिन्यूस उनके बेली एरिया पे घिस रहा है। ड्यू टू दिस एक्सेसिव यूजेज ऑफ हाई टेम्परेचर, the people there have shown a particular type of cancer that is known as Kangri cancer. कश्मीरी लोग में दिखाई देती। Can you see the name of the carcinogen? Soot, coal tar, cigarette smoke, cadmium oxide, aflatoxin, ये एक फंगस के वजह से है जो होता है, ओके, मस्टर्ड गैस, निकल एंड क्रोमियम कंपाउंड, एस्बेस्टॉस, diethyl silbesterol, vinyl chloride, all these causes are what? Cancer, and it affects the different parts of the body. Now, what is the treatment? Treatment जो है वो डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। बनाइन ट्यूमर है तो फर्क नहीं पड़ेगा यार, सर्जरी करा लो, खत्म हो गया। बनाइन ट्यूमर से असर क्या बोलते हैं, पेशेंट को इतना तकलीफ नहीं होता। लेकिन अगर वो मैलिग्नेंट है कैंसर तो डॉक्टर डिसाइड करेगा, उसका सर्जरी भी हो सकता है, उसका कीमोथेरापी भी हो सकता है, रेडिएशन थेरापी होता है, आजकल नया निकला है इम्यूनोथेरापी, और ये सपोर्टिव थेरापी है। नाउ चिल्ड्रन, द थिंग इज दैट जो भी कैंसर पेशेंट्स है उससे जब बात करते हैं लोग, रिसर्च वाले बात करते हैं, तो उन लोग लिटरली बोलते हैं कैंसर से कम दर्द होता है जितना उसके ट्रीटमेंट से दर्द होता है। हम इंडियंस की एक आदत है, हम लोगों को देखते हैं ना कुछ अलग दिखता है तो हम उनको स्टेयर करते। तुमने देखा रहेगा काफी बार कोई लोग जो है वो टकले हैं, औरत भी होती है, कभी आदमी भी होता है,
हाँ, और हमारा है ना मेंटल, हमारा जो सोसाइटी का जो मेंटल वेलबींग है वो इतना पुअर क्वालिटी वाला है कि हम किसी को नहीं छोड़ते, इररेस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि वो क्यों टकला हुआ है या वो क्यों टकली हुई है, वो क्यों विग लगा रहा है, क्यों उसने नकली बाल लगाए, हम सबका मजाक उड़ाते। हमारे देश का एक सबसे गंदा घिनौना सच है कि आधे से ज्यादा मेंटली बीमार और मेंटली पीड़ित इंसान घूमते हैं हमारे आसपास, सबका मजाक उड़ाते। मजाक उड़ाना हमको बहुत अच्छा लगता है लोगों का, मजाक वो उड़ाता है दूसरे का जिसमें खुद में कमी है, वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे का मजाक उड़ाता है। कभी भी ऐसे लोगों को मत शेयर करो जो तुमको टकले दिख रहे या गंजे दिख रहे या विग पहना है, क्योंकि हमको नहीं मालूम, शायद वो कैंसर पेशेंट हो, वो कैंसर सर्वाइवर हो, है ना। तो इसके लिए वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट every individual in our society irrespective of their gender, their caste, their religion and their sex। चाहे वो मेल है, फीमेल है, यूनक है, ट्रांसजेंडर है, इंसान तो है ना। तुम्हारी जैसी भावना है वैसे उनकी भी भावना है, जब तक वो तुमको नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं रिस्पेक्ट करो। एंड द ट्रीटमेंट इंक्लूड्स कीमोथेरेपी, chemicals, there are multiple chemicals that is being injected inside the body through वेन। तुमने कभी देखा रहेगा किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में कि सुई लगाते, सुई कुछ भी होता है उनको एडमिट करने का रहेगा, वो ग्लूकोज का बोतल चढ़ाते, सुई लगाते। ग्लूकोज का बोतल चढ़ाया, बच्चे लोग मच में आराम से लेटे रहो, कोई फर्क नहीं। लेकिन तुमने ये भी देखा रहेगा कभी कभी ये ग्लूकोज के बोतल में कुछ इंजेक्शन घुसेड़ा जाता है। कीमोथेरापी के पेशेंट्स के लिए भी इसी तरह के केमिकल्स को उस सलाइन बोतल में डाला जाता है। और तुम अगर कोई कैंसर पेशेंट को देखोगे ना, उसके हाथ पे काले काले धब्बे दिखेंगे, काले काले धब्बे। कहाँ से आए ये काले काले धब्बे? वो जो केमिकल है ना जो सलाइन के साथ अंदर जा रहा है, वो केमिकल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अंदर के नसों को जला देता है। सोचो, लुक एट द पिटीफुल कंडीशन ऑफ दैट पेशेंट। पहले से ही कैंसर जैसा सेल जो है उसको दर्द पहुंचा रहा है, ऊपर जो उसका ट्रीटमेंट अलग से उसको दर्द पहुंचा रहा है। तुमको मालूम है कीमोथेरेपी किसी भी पेशेंट को रोज नहीं दे सकते, मर जाएगा वो कीमोथेरेपी से। ऑल्टरनेट डेज देंगे, या तो फिर एक हफ्ते में एक बार देंगे या 15 दिन में एक बार देंगे, क्योंकि इंसान वो केमिकल्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इट बर्न्स आवर ब्लड वेसल्स, बट स्टिल इट इज द ओनली ट्रीटमेंट दैट द पेशेंट कैन गेट। रेडिएशन थेरेपी, लोहा लोहे को काटता है, ये हमने सबने ये प्रोवर्ब सुना है ना। अगर रेडिएशन से कैंसर होता है तो रेडिएशन से ही हम कैंसर को रोक भी सकते हैं, लेकिन जो पार्ट में कैंसर है उतने ही एरिया पे वो रेडिएशन देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके साइड इफेक्ट्स है बच्चे लोग, टायर्डनेस, स्किन रिएक्शन, लॉस ऑफ एपेटाइट, WBC घट जाते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, बाल झड़ जाते हैं। जो पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी देते हैं ना बच्चे लोग, तुम देखोगे ना उसके बाल, उसके शरीर के बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं और जलते हैं, लिटरली उसका बाल जलते हुए दिखाई देता है। थिंक द पावर दैट इज यूज्ड फॉर गिविंग रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के पेशेंट के बाल प्रोफ्यूजली झड़ते हैं, दे हैव लॉट ऑफ हेयर लॉस एंड दे आर नॉट लेफ्ट विथ एनी ऑप्शन रादर देन टू गेट बॉल्ड। और अच्छे लोग भी है दुनिया में जो जिनके बाल लंबे होते हैं ना, उन लोग दान कर देते हैं बाल। कैंसर पेशेंट्स के लिए दान होता है बाल और उसका विग बनता है। इम्यूनोथेरेपी, इम्यून सेल्स को यूज करते हैं, वो मैं जब पहला पार्ट लूंगी ना चैप्टर का तब समझेगा। केमिकल्स है, अलग अलग टाइप के इम्यून सेल्स के केमिकल्स है जो कैंसर को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होते। सपोर्टिव थेरेपी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। बीमार हर कोई होता है बच्चे लोग, कोई जानबूझ के बीमार नहीं होता है, जो जानबूझ के होता है उनको चर्बी भी रहती है। जब मैं बोल रही हूँ तुमको कि बेटा सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, तो मत पियो, ठीक है बेटा। तुम सुबह उठ के अपना शरीर का ध्यान रखो, मतलब जो भी है, वॉक पे जाओ, एक्सरसाइज करो, वो करो क्योंकि वो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है। यू टेक द प्रिवेंशन, you take the precaution, rest, leave it to nature. The nature will decide what has to be done. But if a person is not doing so and is affected, okay, we should support that person. ये मत बोलो, अरे तेरे को कैंसर हो गया, तू मर जाएगा। अरे हम कौन होते हैं बोलने वाला?
हमको थोड़ी ना मालूम कि उसका टाइम आया है कि नहीं आया है. Make that particular person positive. Be with that person. Stand with that person. Help that person to come over that particular dilemma. क्योंकि अगर किसी को जैसे ही मालूम पड़ता है ना कैंसर हो गया, उसकी आधी हड्डी पतली तो वही बेचारी, कैंसर कम मारता है जितना वो बीमारी मार देता है. तो मेक दैट पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव. योगा करवाओ. बहुत सारे ऐसे थेरापीज है जिससे हम उभर सकते हैं कैंसर जैसे बीमारी. आई होप आई वॉज प्रेटी क्लियर विद द टॉपिक. ठीक है. यस मैम. समझा किसी को कि सो गए सारे? यस मैम. यस मैम. क्या समझा? कुछ समझा तो बोलो, क्या समझा है? अरे क्या समझा? मैंने जो 20 मिनट गला फाड़ा उसका अर्थ मूल्य क्या निकाला बच्चे लोग, तुम लोग ने? वेस्टर्न की तरफ नहीं, ट्रेडिशंस की तरफ जाना है. हाँ, ट्रेडिशनल कल्चर्स को ज्यादा एक्सेप्ट करो. अब ट्रेडिशनल कल्चर बोला है तो क्या बोलते हैं, उसके लिए मत लिखो झंडा लेके मत लिख लो कि हम हमारे भारत का क्या है ट्रेडिशन कंजर्व करेंगे. तुमने और हमने नहीं कंजर्व करना है, तुम खुद को कंजर्व कर लो, कम्युनिटी का छोड़ दो. तुम खुद का देखो पहला. हाँ, हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, lots of water, exercise regularly, have maximum food that is homemade, use less oil, okay, and do some breathing exercises which is very good for our body. With this note, I would like to close my lecture today. All of you have a great day. Take care. Stay home. Stay safe. May God bless you all.